Please be seated. Ladies and gentlemen, it is now time by locating ourselves, Mangalore University, within the narrative of the nation. Therefore, may I now have the national anthem. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. जीवनामृतदायका आत्मज्ञान
Hemant and Umesh, both from the Physical Education Department, joining Madhuri and Srivani and Madhu in presenting Rashtrakavi Kuvempu's immortal poem, which is also the state anthem. The motto of Karnataka is one state, many worlds, and certainly we notice that in Kuvempu's immortal poem. It is now time for us to listen to a note of welcome. May I request our Honorable Vice Chancellor, our forward-looking thought leader, who has brought in a lot of positive energy. He is open-hearted, internationally recognized, a staunch interdisciplinarian. May I request Professor Dr. K. Bhairappa, our Honorable Vice Chancellor, to welcome, sir. Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of Mangalore University, Sri Vajubai Rudabai Walaji. Distinguished Chief Guest, Dr. Krishan Lal, Founder Vice Chancellor of Mangalore University, Professor B. Sheikh Ali, former Vice Chancellors, Professor M.I. Savadatti and Professor B. Anumaya. Distinguished alumni of Mangalore University, Mr. Guru Kiran, Mr. Jogi Girish Rao, Ms. Mamata Pujari, Ms. M.V. Puvamma, members of the Syndicate and Academic Council, distinguished invitees, members of the faculty, staff, students, representatives of the media, ladies and gentlemen. Today is a very auspicious day in the history of Mangalore University, celebrating the 36th Foundation Day and releasing of Mangalore University Vision 2030 book. I am extremely happy to welcome His Excellency Sri Vajubai Rudabai Walaji, who has kindly consented to release Mangalore University Vision 2030. Your Excellency, I am happy to state that your august presence on this occasion instills confidence in us and provides a great moral support to all of us. Let me have the privilege of briefly introducing our Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of Mangalore University, Sri Vajubai Walaji, who began his public life during school days itself. He has compassion and soft corner for downtrodden and needy people of the society. He is fond of traditional folklore and folk music. In February 1983, he became the mayor of Rajkot and later got elected as MLA of Rajkot 2 constituency from 1985 to hold all the important portfolios in the Gujarat government. Sri Walaji did extremely admiring work during the water crisis in the year 1986. He rendered remarkable service as a revenue minister and as a finance minister during the natural calamities like drought and earthquake. He has presented budget for a record 18th time in the State Assembly. He has also served as the Speaker of Gujarat Assembly, Legislative Assembly in 2013. He was awarded the Best Citizen of India Award in 2006 by International Publishing House, New Delhi. In the political and social field, he is the only person of the Gujarat state who has been selected for this award. Also, he has been felicitated with the award Bharat Gaurav Award by India International Friendship Society, New Delhi in the year 2007. Sri Vajubai Walaji has taken over as the Governor of Karnataka on 1st of September 2014 and continues to serve the people of Karnataka in an enlightened manner. Sir, I extend a hearty welcome to you on behalf of the Mangalore University. Ladies and gentlemen, it's my great privilege to introduce our chief guest, Professor Krishan Lal. Dr. Lal obtained his MSc degree from Agra University and PhD from Delhi University in solid-state physics. He has served as the visiting professor at several universities across the world. In 2000, he became the director of National Physical Laboratory in New Delhi. Presently, he is an honorary professor at IIT Kanpur and visiting professor at Delhi University. Dr. Lal established and led an active research group on crystal growth and study of crystal defects by high-resolution X-ray diffraction techniques. He has edited 8 books
and published several hundreds of research papers in refereed international journals. He has 7 patents to his credit. As the president of Indian National Science Academy, INSA, he brought innovative changes to INSA. A major inter-laboratory project had been successfully developed by Dr. Krishan Lal to prepare certified reference materials in the country. He was the editor of a very famous international journal published from Germany, Zeitschrift für Crystallography, between 1996 and 2003, and is presently editor-in-chief of the Proceedings of the Indian National Science Academy. Dr. Lal has been conferred honorary doctorate degrees from several universities from India and abroad. He is a recipient receiving several prestigious awards like S.K. Mitra Birth Centenary Gold Medal of Indian Science Congress Association in the year 2007 and was member of Asia Pacific Academy of Materials in the year 1997 and President International Crystallographic Association during 2003 to 2007. He is a fellow of the Indian National Science Academy, New Delhi, and also the National Academy of Sciences, Allahabad. Sir, on behalf of the Mangalore University, I extend a hearty welcome to you and also to your family who is present here. Life is not accumulation, it is about contribution. All our former Vice Chancellors and officers have contributed in their own way to the growth of this university. Today, I recall their services to Mangalore University and would like to introduce those who are present here. I wholeheartedly welcome our founder, Vice Chancellor, Professor B. Sheikh Ali. He was a professor of history at the University of Mysore, and in 1980, he became the founder, Vice Chancellor of Mangalore University. He planned the structure of this university. He initiated construction of the double road and the science faculty building. From Mangalore University, he moved to Goa University as a founder, Vice Chancellor. He was responsible for the emergence of a number of scholars in history from the University of Mysore. As historian of great repute, he has written several books and founded many educational institutions. He received several awards for his contribution to the field of education in spite of his old age. He agreed to come over and bless us on this occasion, and it shows his love and respect to this university. I extend a warm welcome to you, sir, on behalf of the Mangalore University and also to your family members who are present here. Now, Professor M.I. Savadatti, a renowned physicist and the former Vice Chancellor of Mangalore University, who served this university for 6 years. He is also amongst us. Professor Savadatti began his career at Karnataka University, Dharwad, as a physics lecturer and went on to become a renowned professor. Professor Savadatti was the Vice Chancellor of this university from 1989 to 1995. He was instrumental in establishing Microtron Electron Accelerator Center here on the campus. During his tenure as the Vice Chancellor, Mangalore University, he gave thrust to research and collaborative work with industries and national laboratories. He was one among those who initiated the setting up of Karnataka Rajya Vijnana Parishad, an NGO for promoting science, a recipient of the Karnataka Rajyosava Award for his contribution to higher education. Professor Savadatti has also served as member of the UGC and also as the Vice Chairman of Karnataka State Council for Higher Education. Under his chairmanship, this Mangalore University Vision 2030 document has emerged out. As a sports lover, he gave encouragement to sports. After completing his tenure successfully as Vice Chancellor of Mangalore University, he joined Baba Saheb Bhimarao Ambedkar University, Lucknow, UP, a central university, as its Vice Chancellor. And now he is currently serving as the Vice Chancellor of Ambedkar Institute of Technology, Bangalore, a deemed university. I extend a warm welcome to you and also your family members on behalf of the Mangalore University. The university has started recognizing from this year
the services of our alumni as great achievers in the society. We have with us Sri Guru Kiran, Sri Jogi Girish Rao, Miss Mamata Pujari. Let me briefly introduce these achievers who would be the role models for the students present here. I welcome all the three of you on behalf of the Mangalore University. The talented and renowned journalist Sri Girish Rao Jogi, a famous writer, has had a long stint in journalism and has been recognized as a very bright literary personality in Kannada. He has mesmerized the readers through his Sunday columns in Udayavani and has been chosen as a writer, poet, journalist, and columnist. He is also recognized in the television media world as a story writer, screenplay, and dialogue writer. Now, Guru Kiran is a noted music director of the Kannada film industry. He started his career as a music director of the Kannada movie A. The music won hearts of Kannadigas all over the world. After completion of graduation in commerce from Mangalore University, Guru Kiran started performing in orchestras in and around Mangalore as a singer and a keyboard performer. He started his musical career in the year 1994 as an assistant to the well-known Kannada music director Sri V. Manohar, and also he had a chance to be a music director in A, directed by Upendra. Guru Kiran did his best, worked hard, and spent some sleepless nights to compose some fantastic songs for that first venture as an independent music director in the movie A. The rest is a history. His Aptamitra hit songs have again reinforced the power of Guru Kiran in the music composition. Jogi, released in the year 2005, was a milestone in the career of Mr. Guru Kiran. The film's album audio sales before the release of the film is an all-time record in Kannada film industry. He is known for both classical and modern music in Kannada film industry, and he has also composed music in other regional languages in South India. Guru Kiran has been recognized as A.R. Rahman of Kannada film industry. Mamata Pujari, fondly known as Kabaddi Queen, born in the year 1986, is a professional international Kabaddi player. Mamata graduated from Gokarnanatha College, Mangalore. Her hunt for awards set in motion when she represented Mangalore University at the international match held at Tirunelveli. She won the gold medal. She also won medals in open Kabaddi tournaments held at Hingat and Dadar. Mamata was a part of the Indian Kabaddi team that won gold in the South Asia Games held in Colombo in the year 2006. She is the reigning captain of the Indian women's Kabaddi team and has been awarded the Rajyotsava Prashasti. On 2nd September 2004, she was conferred with the Arjun Award by the President of India, Pranab Mukherjee, in recognition of her achievements in Kabaddi. I also extend a warm welcome to the members of print and electronic media. I thank you, one and all. Thank you very much. The warm applause from the members of the audience as the Vice-Chancellor was welcoming and introducing our dignitaries and achievers on the stage is ample proof that the achievement of these dignitaries here is recognized by all of us. And you would also recognize that our Honorable Vice-Chancellor does things in a totally different way, and that we see in terms of the characteristics of today's program. Ladies and gentlemen, it's now time to request our Honorable Vice-Chancellor to present a floral bouquet to our dignitaries. May I request you, sir, to welcome our Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of Mangalore University, Sri Vajubai Rudabai Wala. Our chief guest, Professor Krishan Lal, President of the Association of Academics and Societies of Science in Asia, former President of the Indian National Science Academy. Professor V. Sheikh Ali, First Vice-Chancellor of Mangalore University.
Professor M.I. Savadatti, our guest of honor, former Vice Chancellor of Mangalore University. Professor B. Hanumaya, former Vice Chancellor of Mangalore University, our guest of honor. Sri Guru Kiran, our alumni and young achiever in the field of music. Ms. Mamta Pujari from the world of sports. And Sri Girish Rao Hatwar Jogi from the field of literature. May I also request our Dean of the Arts Faculty, Professor K. Chinnappa Gowda, to present a floral bouquet to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. K. Bhairappa. May I request the Dean of the Director of Student Welfare, Professor P.L. Dharma, to present a bouquet of flowers to our Registrar, Professor P.S. Yadapaditaya. It is now time, friends, to begin our formal proceedings by lighting the sacred lamp. परम सम्मानीय श्री वाजू भाई रूडा भाई वाला जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ कर्नाटका एंड चांसलर मैंगलोर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर बायरप्पा, वाइस चांसलर, former vice chancellors, two of them, I have worked closely with them, Professor Savadatti and Professor Hanmantaiah, members of the syndicate, academic council and other bodies, faculty members, members of the press and media, and above all, our young friends led by the distinguished achievers. Ladies and gentlemen, it's indeed a great honor and pleasure for me to be here. अगर हिंदी में कहूँ तो इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर जो मुझे निमंत्रण दिया है उसके लिए मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले उन सभी फैकल्टी मेंबर्स और विशेषकर जो विद्यार्थी और स्टाफ यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको अभिनंदन करता हूँ, उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ ये यूनिवर्सिटी एक से एक ऊंची ऊंचाइयों के शिखर को प्राप्त करेगी। तो एक बार फिर से मैं ऑनरेबल चांसलर, वाइस चांसलर को धन्यवाद देता हूँ। भारत के संदर्भ में ये यूनिवर्सिटी एक युवा यूनिवर्सिटी है, इसमें जोश है, ये कुछ बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है और इसका इम्प्रेसिव रिज़ल्ट है। जिस तरह की बातें हमें अचीवर्स के बारे में मिली, चाहे स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, उस तरह से, और रिसर्च में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। मुझे डायरेक्ट रूप से, सीधे तरह से एक चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जो कि इस यूनिवर्सिटी ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी से पर्स ग्रांट 9 करोड़ की प्राप्त की थी, जिसका मुझे मौका मिला उसकी चेयर करने का, रिव्यू करने का। ये ग्रांट जो लोग नहीं जानते उनको बता दें
ये डीएसटी अपनी तरफ से चुन के देती है, और ये बहुत सराहनीय था कि आपके रिसर्च जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो पब्लिकेशंस हैं, उसके आधार पर ये ग्रांट आपको दी गई है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे नेशनल सेंटर्स लाइक द माइक्रोट्रॉन सेंटर, सेंटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन एंड रेडियो आइसोटोप्स, ओशन एटमॉस्फेरिक टेक्नोलॉजी सेल, और इस तरह के बहुत सारे सेंटर जो कि नेशनली नोन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इस समय भी मुझे पता चला है कि लगभग 50 करोड़ के रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पर चालू हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से ये यूनिवर्सिटी काफ़ी कोशिश कर रही है और बहुत अच्छे लोग इसका संचालन करते रहे हैं, और अब भी प्रोफेसर बायरप्पा इसका डायनामिज्म से जो संचालन कर रहे हैं। आशा है जिस तरह से ये फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है, जिस तरह से टॉप स्कॉलर्स को बुलाते हैं यहाँ पर, जिस तरह से नाक ने इसको ए ग्रेड दिया है, और जितने इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं इस वक्त, मैं अभी रिसेंटली भी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में था, तो इसका आधार बहुत मजबूत है। नाउ एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में कहें तो मैं पहले तो थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि भारत की ये यात्रा बहुत कठिन रही है। अगर ब्रिटिश युग का देखें तो 1881 में मात्र 3.2%, द लिटरेसी लेवल वाज ओनली 3.2% इन 1881, एंड कमिंग टू 1931 इट रोज टू ए मीगरली 7.2%, एंड व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इट वाज ओनली 12.2% इन 1947, यानी 12.2%। उस वक़्त करीब 30-32 करोड़ लोग थे। और इसके पश्चात सभी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इसका स्तर ऊपर बढ़ाया जाए, और इसमें नंबर्स की बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे 1951 के डेटा से हमारी 18.33% थी, जिसका मतलब ये था कि 6.5 करोड़ लोग शिक्षित थे, वो पढ़ लिख सकते थे। और ये अब 74% 2011 के सेंसस से है। आबादी 121 करोड़ है, जिसका मतलब है लगभग 90 करोड़ लोग तो शिक्षित हो गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, अभी 30 करोड़ जो पॉपुलेशन है वो शिक्षित नहीं है, इलिटरेट है। और हमारे लिए दुख की बात यह है कि अभी जो वर्ल्ड की एवरेज है उस 88%, उससे हम नीचे हैं। एशिया में भी कई कंट्रीज़, खासकर हमारे बगल में चाइना, श्रीलंका, म्यांमार हमसे आगे हैं। ये इसको हमें किसी भी तरह से इस मुसीबत को हटाना है। इसके मैं थोड़ा शिक्षा का महत्व के बारे में आप लोगों से एक बहुत ही प्रसिद्ध हमारे फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन, नोबेल लॉरिएट, यूएस के बहुत ही लीजेंडरी फिजिक्स के माहिर माने जाते हैं, उनकी एक घटना बताता हूँ जो बहुत लिखी नहीं गई है। 1960 के दशक में वो अपनी गर्मी की छुट्टियाँ मनाने कैरेबियन आइलैंड, जिसको वेस्ट इंडीज़ भी कहते हैं, वहाँ गए थे। उसने वहाँ से लौट के अपने कई साथियों को, जिनमें एक दो भारतीय भी थी जिनको मैं जानता हूँ, उनको कहा कि भारत जो है ये बहुत तरक्की करने वाला है। उस समय हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, हमें बहुत बड़ी फूड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो लोगों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि भारत बहुत तरक्की करने वाला है। उसने कहा, अपना एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा कि कैरेबियन आइलैंड्स में अफ्रीकन ओरिजिन के लोग हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यूरोपियन हैं, कुछ लैटिन अमेरिका के लोग हैं। तो वो घूमता था तो शाम को देखता था कि जो महीने का पहला हफ्ता है उसमें जो ब्लैक लोग अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, उनकी एरिया में खूब डांस और म्यूज़िक और शराब सब कुछ चलता है। और 2-3 हफ्ते के बाद वो ठंडे होते हैं, और 3rd-4th वीक में तो वहाँ जाना बड़ा डेंजरस है, आपकी रॉबरी हो सकती है, आपकी पिटाई हो सकती है। उसने देखा इंडियंस जो हैं वो इंडियन क्वार्टर्स में लाइफ एक जैसी रहती है। कभी कभी त्योहारों पे, दिवाली वगैरह को छोड़ के
वो नॉर्मल रहते हैं। तो ही वॉज वेरी वंडर स्टक। वो कुछ लोगों से बात की, भाई आप लोग एजुकेशन, यू आर वेरी वेल ऑफ, आपका इकोनॉमिक हालत ठीक ठाक है, आप इस तरह का तो कोई समारोह करते नहीं हैं। तो सबका जवाब एक ही था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने कहा आपके पास तो काफ़ी पैसा है, आपकी समृद्धि है। तो उसने कहा हमें वो सारा पैसा अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करना है। तो उसने कहा जो राष्ट्र, जो सोसाइटी शिक्षा को इतनी प्राथमिकता देती है वो बैकवर्ड नहीं रह सकती है। और कुछ हद तक आज भारत को देख के ये बात सच होती लगती है। हमारे यहाँ इस वक्त करीब करीब 600-700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें से आधी प्राइवेट सेक्टर, आधी पब्लिक सेक्टर में हैं। काफ़ी बड़े इसका स्प्रेड हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ की इस वक्त चिंता है वो एजुकेशन की क्वालिटी है। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी गुंजाइश है कि हम इसको इम्प्रूव करें। मैं अगर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट्स में से थोड़ा सा जिक्र करूं तो उन्होंने, मैं उनके बहुत घनिष्ठ रहा हूँ, थोड़ा व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूँ, उन्होंने एजुकेशन में कई चीज़ों पे बहुत जोर दिया था जो आज भी उतनी सच है। जैसे उन्होंने कहा कि एजुकेशन में एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन हमेशा निरंतर होते रहना चाहिए, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। और सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ आई कोट इन वर्बटम, needed now is to get out of the rigidity of the present system. In rapidly changing world of today, one thing is certain: yesterday's education system will not meet today's, and even less so the need of tomorrow. ये कल वाले क्या तो ये कर ही नहीं सकता है, और ये आज भी उतनी सच है जितनी 1966 में उन्होंने कहा था। अब एक मैं थोड़ा सा जिक्र ये करूँगा कि अब साइंस एजुकेशन और जो सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी है, इसका थोड़ा सा चिंतन होना चाहिए, विशेषकर इस कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कई चीज़ें, कई बातें, खासकर मेकिंग इंडिया के बारे में जो एम्फेसिस दी है, ये एक रोल मॉडल हो सकता है, एक चेंजिंग पैराडाइम हो सकता है जिससे पूरा देश बदल सकता है। हम लोगों ने आज़ादी के बाद बेसिकली ब्रिटिश मॉडल लिया था कि हमारे पास समस्याएं थी कि साइंस करेंगे तो टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन से प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलरली STPP मॉडल है। लेकिन ईस्ट एशिया के कंट्री, जापान, कोरिया, ताइवान वगैरह ने, उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी छोड़ के प्रोडक्शन से शुरू किया और प्रॉस्पेरिटी प्राप्त की, और अब वापस S&T में जा रहे हैं। हमें उस वक़्त प्रॉब्लम थी, हम नॉन अलाइंड थे, हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ये खुल गए हैं द्वार, और काफ़ी हद तक हमने कई अचीवमेंट्स ऐसी की हैं जिसके बारे में कोई भी देश प्राउड हो सकता है। जिसमें से अगर एक का जिक्र करूं तो जो मार्स का ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मंगलायन है, ये एक अद्भुत हमारी क्षमता का प्रदर्शन है और इसको सारे विश्व में अपलॉड किया गया है। अब हमें जो इस वक्त, मैं चूँकि एक्सपेरिमेंटल साइंस से ज़्यादा जुड़ा हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें एक्सपेरिमेंटल वर्क को और बढ़ावा देना चाहिए। जब तक हम अपनी लेबोरेटरीज़ में, अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हाई क्वालिटी एक्सपेरिमेंटल वर्क को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये वीकनेस हमारी रहेगी, हम ग्लोबली आसानी से compete नहीं कर पाएंगे। अब मैं जैसे पहले कह रहा था कि अभी नई सरकार ने हमारे मोस्ट डायनामिक और विजनरी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रेस किया है कि मेकिंग इंडिया पे जोर होना चाहिए। ये तभी सक्सेस होगा कि हम ग्रास रूट लेवल से, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों से एक्सपेरिमेंटल वर्क को दें, एम्फेसिस दें, इनोवेशन पे आएँ, ताकि यहाँ से जो यंग माइंड हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। ये एक काफ़ी बड़ी चैलेंज है और यूनिवर्सिटीज़ हमेशा चैलेंज को लेती आई हैं। मुझे आशा है कि मैंगलोर इसमें बहुत बड़ा एक योगदान देगा और बहुत बड़ा इसका इनिशिएटिव रहेगा, जिससे देश को भी फ़ायदा होगा, कर्नाटक को फ़ायदा होगा और सभी
स्कॉलर्स को भी फ़ायदा होगा। अब मैं थोड़ा सा साइंस एकेडमीज़ के बारे में कहना चाहूँगा। हमारे जो नेशनल साइंस एकेडमी हैं वो साइंस की एपेक्स बॉडी हर एक कंट्री में है, और हमारी जो इंसा है इन्होंने भी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इस पे काफ़ी चिंतन किया है, काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई हैं। और मैं एक चीज़ हमने नई की थी मेरे प्रेसिडेंसी में अभी 2 साल पहले तक, कि हमने अपने फेलोज़ जो कि करीब 850-60 लोग चुने हुए हैं सारे देश में से, उनको ये बहुत एनकरेज किया कि आप रिमोट एरिया में जाएं और एक पूरा दिन रहें, चाहे स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें, यूनिवर्सिटी में रहें। और मुझे बड़ी खुशी है करीब करीब 140 लोगों ने इस काम में अपना सहयोग दिया और बहुत अच्छे उसके परिणाम भी सामने आए। अब मैं यूनिवर्सिटी, सारी एकेडमीज़ के कई क्लस्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे इंटर एकेडमी पार्टनरशिप जिसमें मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, और 140 एकेडमीज़ और मेडिकल साइंस की एकेडमी से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने भी बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स, स्टडीज़, एक्शंस और कार्यक्रम चला रखे हैं, जिसमें एक जिसके बारे में कहा गया है कि मैं एशिया की 30 जो देश हैं उनकी 34 एकेडमीज़ और सोसाइटीज़ जो एपेक्स बॉडीज़ हैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो इसमें साइंस एजुकेशन और साइंस लिटरेसी एक मेजर एरिया है, जिस पे हर साल करीब करीब हमारे पास ही इसका करीब करीब 25 से 50 हज़ार डॉलर हम इस पे खर्च करते हैं। उसमें हमारे देश में भी 1-2 मीटिंग हो चुकी हैं और आगे फिर होने वाली हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी को भी कहूँगा कि ये भी इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करें। इक्सू जो दूसरी बॉडी है उसका भी मुझे सौभाग्य मिला था, अभी उसका एक्सटर्नल रिव्यू हुआ जिसमें मैं भी एक मेंबर था। तो वहाँ पर भी क्वेश्चन ये उठा है कि जो पिछड़े लोग, जो रीजन्स हैं विशेषकर अफ्रीका में और थोड़े से जो एशिया में हैं, यहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसकी रिपोर्ट्स काफ़ी इक्सू की वेबसाइट पे हैं, काफ़ी काम अभी चल भी रहा है। अब थोड़ी मैं एक जो बड़ी चिंता का विषय है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स है। हमारे यहाँ अभी एजुकेशन हो, रिसर्च हो, इसमें पिछले दिनों बहुत चिंता का विषय है कि बहुत लोगों ने दुर्भाग्य से साइंस टेक्नोलॉजी में इनका उल्लंघन किया है, एथिकल स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया है। काफ़ी सारे प्लेगरिज्म के केस आए हैं और सारी एकेडमीज़ और उनकी संस्थाएं इसके बारे में बहुत चिंतित हैं। मैं सारी बातें अच्छी नहीं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी अंडरलाइन करना चाहता हूँ। जब भी मुसीबत ये आती है, कभी कभी आपका प्रमोशन, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो इससे लिंक होते हैं। पीछे मैं अपने देश में भी ये प्रॉब्लम है, मैं चाइना के बारे में बताऊं कि उन्होंने अपने कंट्री को इस लेवल पे ले आए कि दुनिया में अगर कंट्री वाइज देखें तो मैक्सिमम पब्लिकेशन अब चाइना से आती हैं। और नेचर ने 2 साल पहले आर्टिकल में निकाला कि 30% में फ्रॉड है। तो मैं उनके प्रेसिडेंट से मेरे काफ़ी अच्छे संबंध हैं, तो उनको क्वेश्चन किया तो ही लाफिंगली सेड, उसने मजाक में कहा भाई 70% तो ठीक हैं हमारे, तो भी बहुत हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत चिंतित हैं और हमारे देश में भी ये समस्या है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं ये ख़राब हैं, और अगर मैं गौतम बुद्धा को कहूँ कि इसका जानना काफ़ी नहीं, इस पर चिंतन करना काफ़ी नहीं, इस पर लेक्चर में जैसे मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा था नॉलेज इज़ गुड बट इल अवेल इट नॉट। ज्ञान, उसके बारे में जानकारी तो अच्छी बात है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर होना चाहिए। लास्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा जो भारत की परंपरा नॉलेज में है, वो जो कि हमारे अध्यात्म में है और उसका जो बहुत एक गहरा संबंध विज्ञान से है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं ऑनरेबल गवर्नर जी से प्रभावित हूँ, तो अगर अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। इसका ये एक तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय यूरोप में बलोनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी बनी इटली में,
उस समय यूरोप में पहले यूनिवर्सिटी बन रही थी और हमारी जो दो लास्ट 3-4 यूनिवर्सिटी बची थी, तक्षशिला, नालंदा वगैरह, उनको नष्ट किया जा रहा था। ये रफली एक समझने की बात है, ये हमें समझना पड़ेगा। लेकिन जब भी हम अपने पुराने जो बहुत टॉप का लिटरेचर है, जिसको वर्ल्ड भी मानता है, सारे विश्व में मानते हैं, चाहे वो टेक्स्ट रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता वगैरह हों, गीता तो महाभारत का ही अंग है, उसमें इतने अद्भुत रेफरेंस हैं जिसको कई बार तो एज ए फिजिसिस्ट मैं डर भी जाता हूँ कि मुझे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ जो रिसर्च में मेरा सब्जेक्ट भी रहा है काफ़ी दिनों से, कि डायमंड क्रिस्टल की स्टडीज़ के बारे में। हीरा भारत की देन है, ये सब वर्ल्ड में आप मानते हैं, पर हीरे का भारत से पहले किसी को पता नहीं था। इसका उसका कैसे, किस रूप में वो दिखाई देता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका मैंने देखा वाल्मीकि की रामायण, जो कि हमारा सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, उसके अंतिम भाग में, उत्तरकांड में 39 श्लोक जो सर्ग है, उसके 25वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि ने क्या कहा, एवं उक्तवा तदो तेभ्यो भूषणानि यथार्हत वज्राणि च महाराणी सस्वजे नरर्षभ। What it is being said is कि उस समय राम जी वापस आ गए थे अयोध्या, दोबारा से महाराजा बन गए, तो वो वानर सेना के कमांडर्स का सम्मान करना चाहते थे। तो उन्होंने इस प्रकार कह, एवं उक्तवा, इस प्रकार कहते हुए उनको उनके स्टेटस के अनुसार, यानी जिस यथार्हत है, जिस प्रकार का उनका स्टेटस था, उनको बहुत सारे ज्वेलरी के पीसेस और प्रीशियस डायमंड दिए, जो बड़े कॉस्टली डायमंड थे, वो उनको इनाम में दिए। ये रामायण में है, वाल्मीकि की, वेल नोन है, सभी मानते हैं, वेस्टर्न लोग भी मानते हैं। एक युग आगे आए तो महाभारत के आदि पर्व में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो गया है, और स्वयंवर के बाद जब उनका पांडवों को पता चल गया कि द्रौपदी ने पांडव अर्जुन को ही वर्ण किया है, तो उन्होंने बहुत सारी गिफ्ट्स बहुत राजाओं ने दी। उसमें पढ़ने में ही बहुत इतना मन विचलित भी होता है कि उस समय भी ट्रेड बहुत था, बहुत देशों से आता था सामान। लेकिन डायमंड के बारे में मैं अब आता हूँ, तो उन्होंने ततस्तु कृतादार्भे, ये वैशंपायन जी ने 3 श्लोकों में इसका वर्णन किया है। उसको मैं सिंपल वे में कहता हूँ कि पांडवों के लिए भगवान कृष्ण ने वैदूर्य मणि जनित सोने के आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृग चर्म से बने हुई सुंदर शैयाएं, आसन, बड़े बड़े वाहन, बड़े सारे इंपोर्ट तब भी होते थे। लेकिन मेन चीज़ जो मैं कह रहा हूँ वो ये है, वैदूर्य और वज्रमणि, हीरे वाले से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर भेजे। यानी उस समय हीरा अवेलेबिलिटी बहुत थी, बर्तनों में लगने लगा। मैं एज ए फिजिसिस्ट कह रहा हूँ कि तब अवेलेबिलिटी महाभारत में आते आते बर्तनों में लगने की नौबत आ गई। हीरा उस लेवल पे अवेलेबल था। इसी पीरियड में अगर आप भागवत पुराण के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जी के जन्म पे आए, अभी हाल में ही उनका जन्मदिन देश भर में मनाया गया, तो उसमें भागवत पुराण के 3 अध्याय 10 के 2 श्लोक में कहते हैं, उस वक़्त दिशाएं प्रसेद दुर्गगनम निर्मल उद्गोदयम, यानी दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न थी, आकाश निर्मल था, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, हीरों की बस्तियां, और अंत में कहा है कि हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही थी। हीरा इतना कॉमन एग्जाम्पल था कि उसकी खाने, इवन द माइंस ऑफ डायमंड, दे वर ऑल्सो बाउंटीफुल। इसके अंत पार्ट जो मैं कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल रीसेंट है, भारत के हिसाब से बहुत रीसेंट है। गौतम बुद्ध का टाइम, 2500 साल पहले, एक बहुत उनकी सुंदर पुस्तक जो उनके सेइंग की है, धम्मपदम, वो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, पौंडीचेरी में दी मदर ने उस पर कमेंट्री की।
तो उसमें एक बहुत अद्भुत श्लोक है कि अतना, पाली में अतना व कतम पापम अतजम अतसंभवम एट्सेट्रा। उसका अर्थ बड़ा सुंदर है, एक स्पिरिचुअल और एक मटेरियल साइंस, स्पिरिचुअल और मटेरियल साइंस। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करता है, ईविल ओरिजिनेटेड डन बाय हिमसेल्फ, यानी इफ ही डज ईविल, अगर बुरा काम करता है या बुरा काम शुरुआत उससे होती है, वो करता नहीं है पर ही इज द ओरिजिनेटर, या एमोनेटिंग फ्रॉम, वो करता भी नहीं है, उसी से निकल रही है बुराई, विल क्रश द फूल एज डायमंड क्रशेज ए हार्ड जेम। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ये बात इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतने लिटरेट लोगों को नहीं, एक आम आदमियों की सभा में, उसमें शायद गांव के लोग भी थे, ट्रेडर्स भी थे, सब व्यापारी भी थे, उनको समझा रहे हैं। ये आम नॉलेज हो गई, डायमंड क्रशेज द हार्ड जेम, दिस ट्रुथ इज इवन ट्रू टुगेदर। आज भी इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, डायमंड से हार्ड अभी हमें कोई पदार्थ पता नहीं है, 2500 साल पहले की बात। लेकिन इसी पीरियड में उसके बाद हमारी नॉलेज, मैंने कहा 1000 साल पहले वो नष्ट होने लगी। डायमंड के बारे में क्यूरियोसिटी यूरोप में उठी। अब मैं थोड़ा, उनका एक बड़ी फेमस बुक है द ट्रेवल्स, एक सर जॉन मेंडेवल थे, ही रोट 1360। जैसे मैंने कहा, सबको ये तो मानते थे यूरोप में कि डायमंड, हीरा भारत की देन है। ही क्लेम्ड ही हैज विजिटेड इंडिया and now what he reported, I quote from his book, diamonds grow together, male and female, and are nourished by the evening dew। वो समझ रहा है जैसे ये कोई जीव है जिसमें एक मेल है एक फीमेल है, वो मिलके ग्रो करते हैं, उनका विकास मिलके होता है, यानी नर मादा की तरह से उनका विकास होता है। दे ब्रिंग फोर्थ स्मॉल चिल्ड्रन विच ग्रो ऑल थ्रू द ईयर। वो छोटे छोटे बच्चे पैदा करते हैं जो सारा साल बड़े होते रहते हैं। फिर कहता है, डायमंड टेंड टू बी फाउंड इन इंडिया, वो भारत में जहाँ पर्वत हैं वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर सोने की खान है वहाँ पाए जाते हैं, और ऑफन वो उस सोने के मांस के अंदर दबे हुए हैं, उसमें एम्बेडेड हैं। और फिर उसने ये भी कहा कि पानी के उसको मिला दो, मई में रखो तो सोना, ये हीरा बड़ा हो जाए। इट्स ऑल बोगस, ही परहैप्स नेवर विजिटेड। हीरे की खाने इस प्रकार की थी नहीं, लेकिन इसका हम लोगों का विकास तब रुक गया था। उसके बाद ये दो लोगों ने इसको, गैलीलियो, ये इटली में उन्होंने इसको फोकस सनलाइट पे देखा, डायमंड इवोपरेट होते हैं। और मॉडर्न केमिस्ट्री के यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है केमिस्ट्री। लेवोजिए जो फादर माने जाते हैं, उन्होंने लूव, जो इस वक्त फेमस म्यूजियम है, वहाँ यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, डायमंड को सनलाइट से फोकस करके इवोपरेट किया, पर एक बेल जार में। उससे पता चला नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, ये सोना और कोयला एक बराबर हो गए। तो ये एक, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे किस प्रकार का अद्भुत ये ज्ञान कई तरह से उसमें दबा हुआ है। मैं ये कोई एग्जॉस्टिव स्टडी नहीं कह रहा, जो मेरे अपने पढ़ने में आया है मैं उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, जैसे मैं चूँकि NPL का डायरेक्टर रहा हूँ, मेजरमेंट और राष्ट्र के लिए इसका स्टैंडर्ड रखना हमारा ड्यूटी था। इसके बारे में मनुस्मृति के 8वें चैप्टर में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जिसको मैं वर्ल्ड में कई जगह समझा चुका हूँ। सबसे पुरानी कैलिब्रेशन सर्विस शायद भारत में थी, जो मनु जी ने, राजा की ड्यूटीज़ इस चैप्टर में हैं। तो उन्होंने कहा, तुलामानम प्रतिमानम सर्वम स्यात् सुलक्षितम षट्सु षट्सु चय मासेषु पुनरेव परीक्षते। राजा को क्या करना चाहिए कि हर 6 महीने में जो वेट है, जो स्टैंडर्ड ऑफ मास है, और जो उनको तोलने वाले तराजू हैं, उनको दोबारा से उनकी परीक्षा करके स्यात् सुलक्षित, उसको पक्का करना चाहिए और उस पर स्टैंप भी लगानी चाहिए। इससे पहले वर्ल्ड में कहीं इस प्रकार का कोई सिस्टम का जिक्र नहीं मिलता है। इसी प्रकार एटम के साइज़ के बारे में मैं बता सकता हूँ, पर मुझे समय का भी ध्यान रखना है।
और अंत में मैं केवल दो बातें फिर भी कहने से नहीं रुक पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ हमारे साहित्य में गॉड की, भगवान की बहुत सारी डेफिनेशन है और कुछ इतने फिजिक्स के क्लोज हैं कि आई कांट हेल्प बट शेयरिंग विद यू। जैसे उपनिषद के दो ऐतरेय उपनिषद में या इवन गीता में भगवान का उन्होंने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, व्हेन ऑल द मैटर एंड एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज गॉड। अक्षरम ब्रह्म परमम, देयर कांट बी बेटर डेफिनेशन ऑफ गॉड। In Aitreya Upanishad, they say Prajnanam Brahm. That is very relevant for university. The distilled knowledge, the absolute knowledge, the ultimate knowledge is God. Knowledge itself is God. And recently I found for scientific research a fantastic mention by Yajnavalkya in the Brihad Aranyak Upanishad. He says, Vijnanam Anandam Brahm. If you do research, which I also, as a small student of science, have many times seen, when you get a fantastic new result, that anand, vijnanam anandam, the real pleasure you receive out of them, that is Brahma. So this is the type of tradition we have inherited. The challenge for us is that we have to stand up, we have to rise up to that level so that we feel proud that we only don't sing about this, but we can rightly claim that heritage of thousands of years. अंत में मैं फिर से इस समय सबका धन्यवाद करता हूँ। पर्टिकुलरली मैं अपने महामहिम ऑनरेबल गवर्नर साहब का, वाइस चांसलर प्रोफेसर बायरप्पा और उनके साथियों का कि उन्होंने ये अवसर दिया, और मैं समस्त जितने यहाँ विद्यार्थी हैं, फैकल्टी है और जो स्टाफ के लोग हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये बहुत आशा करता हूँ कि अगला जब फाउंडेशन डे आए तो उस पे बायरप्पा जी अगर यहाँ रहे या ऊपर ना चले गए, बहुत ऊंची यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, तो वो और भी इसकी प्रशंसा और नई उपलब्धियों का बयान करेंगे। तो परमात्मा आप सबको सफलता दे, सुख दे और अच्छी बुद्धि दे, ताकि आप आगे और आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।